Hello and welcome students in my video lecture series on the subject of botany. We are discussing the botany of class 12th and we are in the unit of strategies for enhancement of food production in crop plants. And in the previous video lecture we have discussed the fundamental concepts that how we can enhance the food production in crop plants, what is plant breeding, what are the various steps in plant breeding, what is grain revolution, and we have also studied that how the new varieties were developed by scientists, plant breeders, that ultimately led to the green revolution in our country. In this video lecture we will focus on another topic of this unit, that is plant breeding for disease resistance. We know that our crop plants, they are affected in one or other way by a number of what's called as pathogens. These pathogens, they cause a number of diseases in crop plants. If we see that generally our crop plants, they are affected by three what's called as pathogens. One is called as fungi. Fungi जो है ये हमारे crop plants के अंदर काफी सारे diseases create करती है. इसी तरह हमारे पास बैक्टीरिया जो है ये भी हमारे क्रॉप प्लांट्स के अंदर काफी सारा डिजीजेस क्रिएट करती है. इसी तरह हमारे पास जो वायरसेस है, वायरसेस भी जो है हमारे क्रॉप प्लांट्स में काफी सारे डिजीजेस प्रोड्यूस करते हैं, डिजीजेस काज करते हैं. तो हमने देखना है कि हम अपने क्रॉप प्लांट्स को किस तरह ब्रीड करें ताकि हम ऐसे नए प्लांट्स बनाएंगे जिनमें ये बीमारी जो है नहीं लगेंगी. तो मैंने आपको बताया जो हमारे क्रॉप प्लांट्स है, मेजॉरिटी ऑफ आवर क्रॉप प्लांट्स, they are affected either by fungi, they are affected either by bacteria or by viruses. And ये pathogens है, ये जो disease causing agents है, ये क्या करते हैं, they reduce our crop production, they reduce our crop production. तो fungi, bacteria and viruses are the pathogens that cause diseases in our crop plants and reduce their crop production. So if you see what is the एक्सटेंट ऑफ डिवास्टेशन, कितना नुकसान ये बैक्टीरिया, फंजे और वायरसेस जो है हमारे क्रॉप प्लांट्स पे कितना नुकसान करते हैं. इफ यू सी द एक्सटेंट ऑफ डैमेज caused by these pathogens to our crop plants, it ranges from 20 to 30%. So our crop plants, our production may decrease by 20 to 30% when they are affected, when diseases are caused in them by fungi, bacteria and viruses. And it has been found that in certain crop plants, the total crop is being devastated. The total crop is being lost by the disease causing agents, fungi, bacteria and viruses. So the loss in crop plants in terms of their production may range from 20 to 30%, or even the loss may be up to 100%. Total crop plants are lost, or total crop production is lost by these disease causing agents, the pathogens. And what is the strategy, how we can overcome these losses that are caused by these pathogens? The strategy is that we have to create new plants, we have to create such plants, those that are resistant, that does not allow these pathogens to affect them or to reduce the crop yield. So we have to create new plants, we have to develop new plants, we have to breed new plants. Those plants should have resistance genes in them. We have to insert resistance genes in them so that they are not affected by any type of pathogen, whether it is fungi, whether it is bacteria and whether it is viruses. And not only this will reduce the crop losses, this will make the plants resistant against pathogens, this fungi, बैक्टीरिया एंड वायरसेस. न सिर्फ हमारे क्रॉप प्लांट्स जो है जब हम ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस करेंगे, न सिर्फ हमारे क्रॉप प्लांट्स में रेजिस्टेंस बढ़ेगी, न सिर्फ हमारे क्रॉप प्लांट्स में नुकसान कम हो जाएगा, बल्कि साथ साथ ही जो है हमें जो है केमिकल बेस्ड बैक्टीरियोसाइड्स या केमिकल बेस्ड फंजीसाइड्स जो है जिन्हें हम अक्सर बेशतर स्प्रे करते हैं अपने क्रॉप प्लांट्स के ऊपर, ये हमें स्प्रे नहीं करने पड़ेंगे. याद रखना है कि जब हम अपने क्रॉप प्लांट्स इस तरह बनाएंगे ब्रीडिंग के थ्रू, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम ऐसे प्लांट्स बनाएंगे, ऐसे नए प्लांट्स बनाएंगे जिनके अंदर हम डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स जो है इंसर्ट करेंगे, जिनके अंदर हम डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे. उससे क्या होगा, हमारी क्रॉप लॉसेस जो है, क्रॉप प्रोड्यूस या क्रॉप यील्ड लॉसेस जो है
एक तो वो कम हो जाएंगे, बल्कि साथ साथ ही जो हमारे पास जो हमारे पास जो हम पेस्टिसाइड्स, जो हम ये फंजिसाइड्स या बैक्टीरिया साइड्स जो हम केमिकल स्प्रे करते हैं अपने क्रॉप्स के ऊपर, सो एज टू गेट रिड ऑफ दिस फंजे एंड बैक्टीरिया, दीज डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, ये हमें स्प्रे नहीं करने पड़ेंगे। ये हमें फायदा हो जाएगा व्हेन वी जब हम क्या करेंगे, जब हम ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस करेंगे। बिफोर ब्रीडिंग, इससे पहले कि जो ब्रीडिंग हम स्टार्ट करें, वी शुड नो द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हमें आइडिया होना चाहिए कि कॉजुअल ऑर्गेनिज्म कौन सा है। बैक्टीरिया के लिए हमें अलग जीन्स इंसर्ट करने पड़ेंगे, फंगस के लिए हमें अलग जीन्स इंसर्ट करने पड़ेंगे, वायरसेस के लिए हमें अलग ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। सो बिफोर actual breeding is being performed, we should know the causal agent of that disease, and we should know the mode of transmission, that how those pathogens affect our crop plants. What is the strategy, what is the modus operandi, what is the way, what is the pattern, what is the methodology, what is the strategy adopted by those pathogens that led to the destruction of our crop plants. So we should have an ample idea अबाउट द कॉजुअल ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे फसलों को नुकसान करता है। ये फंजे है, ये बैक्टीरिया है, ये वायरसेस है। अगर ये बैक्टीरिया है तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे इफेक्ट करता है हमारे क्रॉप प्लांट्स को। अगर ये वायरस है तो उस केस में भी हमें स्टडी करना है कि कैसे ये हमारे क्रॉप प्लांट्स को इफेक्ट करता है। शाबाश, हर किसी केस में हमें समझना है कॉजुअल ऑर्गेनिज्म कौन सा है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है। और सबसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये रेजिस्टेंस हमारे पास किसी प्लांट के अंदर, होस्ट प्लांट के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है, ये इस प्लांट में एक नेचुरल एबिलिटी होती है कि ये पैथोजन को डिजीज काज करने नहीं देता है, और ये इस होस्ट प्लांट के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बोला वी आर गोइंग टू ब्रीड सर्टेन प्लांट्स, वी आर गोइंग टू डेवलप सर्टेन प्लांट्स which are going to be resistant for these pathogens. How is this possible? What we do actually, we screen germplasm of living organisms or plants. हम एक क्रॉप है हमारे, उसके क्रॉप उसके दूसरे वेराइटीज या वाइल्ड रिलेटिव्स में हम देखते हैं कि क्या कोई डिजीज रेजिस्टेंस जीन है। उस डिजीज रेजिस्टेंस जीन को हम वहां से निकाल के या उस हम अपने प्लांट, क्रॉप प्लांट को उसके साथ जो है हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन करते हैं, ताकि वो जो डिजीज रेजिस्टेंस जीन है वो हमारे क्रॉप प्लांट के अंदर इंसर्ट हो जाए, प्लांट के अंदर आ जाए। जैसे ही वो हमारे प्लांट के अंदर आ जाए, हमारे इस प्लांट में अब एक नेचुरल टेंडेंसी, एक अब इनबॉर्न, अब इसमें एक सलाहियत आएगी that it will not allow any pathogen to get to cause disease in it. तो उससे क्या होगा, जो ये असल में ये इसमें ये सलाहियत जो है बेसिकली इसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इसके जीन्स में प्रेजेंट होता है। अब मैंने आपको बोला बेसिकली हम रेजिस्टेंस जीन्स एक प्लांट से लेके एक वाइल्ड प्लांट या एक कल्टीवेटेड वैरायटी से हम निकाल के उसी के दूसरे किसी क्रॉप में इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्लांट ए है, हमारे पास प्लांट बी है। प्लांट ए में जो है डिजीज रेजिस्टेंस जीन है, फंगल डिजीज रेजिस्टेंस जीन है, लेकिन इसमें यील्ड कम है, इसमें फसल कम बनती है। आपके पास प्लांट बी है, इसमें फसल बहुत ज्यादा बनती है, लेकिन इस प्लांट में जो है डिजीज रेजिस्टेंस जीन अगेंस्ट फंजी प्रेजेंट नहीं होती है, यानी इसमें फसल तो बहुत बनती है लेकिन इसमें बीमारी भी बहुत लगती है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लांट्स को हम हाइब्रिडाइज करेंगे ताकि हमारे पास एक ऐसा प्लांट बने जिस प्लांट के अंदर अब जो डिजीज रेजिस्टेंस जीन भी आ जाए और उसमें हाई यील्डिंग कैपेबिलिटी भी हो, उसमें फसल भी ज्यादा बने और साथ ही साथ उसके अंदर जो है बीमारी भी ना लग जाए। तो ये पर्पज है, इस तरह हम ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस करते हैं। तो मैंने आपको बताया जो हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ आवर क्रॉप प्लांट्स दे आर आइदर अफेक्टेड बाय फंजाई, दे आर आइदर अफेक्टेड बाय बैक्टीरिया और दे आर आइदर अफेक्टेड बाय वायरसेस। And I told you that these pathogens, fungi, bacteria, and viruses, they cause a lot of damage to these crop plants. As a result of that, the crop yield is lost in majority of cases 20 to 30%, or it has been found that in some cases the loss is complete 100%. Total loss of the crop plant takes place or the crop yield takes place. And I told you that what we do actually is that we are going to develop such plants
we are having the resistance in plants so that they are not damaged by what's called as these pathogens. And remember, before we actually perform the breeding in these plants, we should have an ample idea. हमें पता होना चाहिए कि causal organism कौन है और mode of transmission क्या है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो फंजे है, फंजे जो है दे कॉज ए नंबर ऑफ डिजीजेज इन प्लांट्स. तो मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया, मैंने आपको बताया कि अगर प्लांट्स की हम बात करेंगे, प्लांट्स में जो सबसे ज्यादा डिजीजेस है वो फंजे के कारण होती है. हमारे एप्पल ऑर्किड्स में जितने भी डिजीजेस होते हैं, राइट फ्रॉम फर्स्ट स्प्रे से लेके लास्ट स्प्रे तक हम फंजिसाइड स्प्रे करते हैं, बिकॉज प्लांट्स में ज्यादा फंगस डिजीज काज करती है, उसके बाद उसके अंदर बैक्टीरिया डिजीज काज करते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो तीसरे रैंक पे है वो वायरसेस है. तो मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं कि प्लांट्स के अंदर जो मेन फंजे जो डिजीज करती है वो फॉर एग्जांपल रस्ट है. रस्ट्स के भी टाइप है. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग ब्राउन रस्ट ऑफ वीट. वीट के अंदर एक ब्राउन रस्ट हो जाता है, वो फंगस के कारण होता है. इसी तरह शुगर केन की अगर बात की जाए, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, शुगर केन में एक बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन, वो भी फंगस के कारण होती है. इसी तरह पोटैटो के अंदर एक बीमारी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. दिस इज आल्सो कॉज्ड बाय फंजे. सो fungi, they cause a number of diseases in plants. They may be in the form of rustus. For example, we are having black rust in wheat. They may be in the form of red rot of sugarcane. They may be in the form of late blight of potato. Similarly, bacteria जो है, they also cause a number of diseases. For example, we are having black rot of crucifers. Crucifers are the members of Cruciferae, Brassicaceae. जो हमारे पास मस्टर्ड है, जो हमारे पास टर्निप है, ये जो हमारे पास रेडिश है, इनमें एक डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर्स. एक डिजीज है, ये बैक्टीरिया काज करते हैं. इसी तरह वायरसेस काफी सारे डिजीजेस काज करते हैं. फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, टर्निप, काफी सारे डिजीजेस है वायरस के कारण. फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक डिजीज है, या हमारे पास कॉलीफ्लावर मोज़ेक डिजीज है, या हमारे पास जो है टर्निप मोज़ेक डिजीज है. ये सारे डिजीजेस जो है ये हमारे पास हमारे प्लांट्स के अंदर वायरसेस के कारण होते हैं. मैंने आपको बताया कुछ फंगल डिजीज के मैंने एग्जांपल दिए. फॉर एग्जांपल रस्ट की मैंने बात की, वीट ब्लैक रस्ट ऑफ वीट की मैंने बात की, मैंने रेड रॉट ऑफ शुगर केन की बात की, मैंने बैक्टीरियल लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की बात की, मैंने बैक्टीरियल डिजीजेस की बात की, खासकर मैंने बात की ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर्स की मैंने बात की, मैंने वायरल डिजीजेस की बात की, मैंने इनमें टोबैको मोज़ेक का जिक्र किया, मैंने कॉलीफ्लावर मोज़ेक का जिक्र किया, मैंने टर्निप मोज़ेक का जिक्र किया. अब हमारे पास जो है हम किस तरह, हमारे पास कौन कौन से मेथड्स है जिसके थ्रू हम अपने क्रॉप प्लांट्स के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप करें. हमारे पास व्हाट आर द वेरियस मेथड्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन we can breed our crop plants for disease resistance, or we can create crop plants. Such crop plants are disease resistant. Basically, methods of breeding for disease resistance, there are two methods of breeding for disease resistance. One is we are having conventional breeding, and second is we are having mutation breeding. First we will focus on conventional breeding. Conventional breeding is the type of breeding in which we do hybridization and selection. हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्लांट होता है, हम उस प्लांट में हमें पता है इसमें डिजीज रेजिस्टेंस जीन है, हमारे पास दूसरा प्लांट है जिसमें हम ये डिजीज रेजिस्टेंस जीन लाना चाहते हैं. हम इन दोनों प्लांट्स को हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बोला आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते हैं. जब इन दो प्लांट्स के बीच हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हमारे पास रिकम्बिनेंट्स बनते हैं. हम उन रिकम्बिनेंट्स में सिलेक्ट करते हैं ऐसे रिकम्बिनेंट्स जिसके अंदर अब ये हमारा डिजीज रेजिस्टेंस जीन इंसर्ट हुआ हो और जिसके अंदर हाई यील्ड भी प्रेजेंट हो. हम ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं. यही हो गया. यानी कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो है, इट इन्वॉल्व्स हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, एंड दोज पेरेंट्स आर देन मल्टीप्लाइड, देन a new variety is released. Shabash. And you know that conventional breeding involves hybridization and selection and involves following steps. What are the various steps in conventional breeding? And remember, चाहे हमें किसी क्रॉप प्लांट का यील्ड बढ़ाना हो, चाहे हमें किसी प्लांट का जो है डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ानी हो, चाहे किसी प्लांट की कीपिंग क्वालिटी हमें बढ़ानी हो, चाहे किसी प्लांट के अंदर कोई और कैरेक्टर हमने इंसर्ट करना हो, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करनी हो, स्टेप्स सेम है. स्टेप्स हर जगह सेम है. कन्वेंशनल ब्रीडिंग में जो मैंने आपको पहले स्टेप्स बताए, मैंने आपको बताया कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म मैंने बताया. जब हमने प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स देखे, सबसे पहले हमने कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म किया, फिर हमने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स किया,
टेस्टिंग ऑफ पेरेंट्स की, फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पेरेंट्स का किया, फिर हमने सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट्स किया, फिर हमने सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट्स के बाद क्या किया हमने जो टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ वैरायटी किया, या सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिकम्बिनेंट्स हमने किया, टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ वैरायटीज हमने किया, हमने कमर्शियलाइजेशन ऑफ वैरायटीज किया। तो ये जो दीज आर द स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग। अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी क्रॉप प्लांट की वैरायटी बढ़ानी हो, तब हमने ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन पर्पस हमारा होना चाहिए टू डेवलप ए वैरायटी हैविंग जीन्स जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई यील्ड। अगर हम इस केस में हमें डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप करनी है, हमें सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन अब हमने इस बार क्या करना है, मकसद हमारा है टू डेवलप ए न्यू क्रॉप प्लांट हैविंग डिजीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजेन्स। इसी तरह अगर हमने जो है इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस बढ़ानी हो, सेम स्टेप्स है, लेकिन उस टाइम हमारा पास मकसद है टू डेवलप ए वेराइटी, टू डेवलप ए न्यू क्रॉप प्लांट हैविंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट्स। अगर हमें पास हमारा पर्पस हो टू एनहांस द न्यूट्रिशनल क्वालिटीज ऑफ ए क्रॉप प्लांट, तो हमने उस टाइम भी ये सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन पर्पस उस टाइम डिफरेंट होगा। पर्पस होगा टू डेवलप ए क्रॉप वेराइटी हैविंग हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। सो रिमेंबर ऑलवेज व्हाट जो भी आपने प्लांट ब्रीडिंग में जो भी एनहांसमेंट करनी हो, जो भी न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट करनी हो, यील्ड बढ़ाना हो, डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप करनी हो, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करनी हो, हर बार आपने सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने पॉइंट के ऊपर आता हूं, कन्वेंशनल ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस में पहला क्या है, यू हैव टू स्क्रीन जर्मप्लाज्म फॉर रेजिस्टेंस जीन्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाइल्ड प्लांट्स हो सकते हैं, वाइल्ड रिलेटिव्स हो सकते हैं, या कोई कल्टीवेटेड प्लांट हो सकता है। मुझे किसी क्रॉप प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजेन्स डेवलप करनी है, तो मैं उसके वाइल्ड प्लांट्स देखूंगा, मैं उसके क्लोजली रिलेटेड वेराइटीज देखूंगा, उस वाइल्ड प्लांट्स या क्लोजली रिलेटिव्स के अंदर में देखूंगा कि क्या कोई प्लांट ऐसा है जिसमें बीमारी नहीं लगती है। तो मैंने असल में क्या किया, मैंने स्क्रीनिंग ऑफ जर्मप्लाज्म किया। फॉर व्हाट पर्पस क्या है मेरा, फॉर रेजिस्टेंस जीन, सो दैट those wild plants, those relatives of my crop plant should have resistance genes. And once I did the screening and germplasm for resistance genes, second step is we have to carry out selection. इस germplasm के अंदर मुझे ऐसे plants जिनमें ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंस है, उनको मैंने बेटर प्लांट्स को मैंने सिलेक्ट करना है। बेटर प्लांट्स का मतलब हो गया ऐसे प्लांट्स, ऐसे बेटर प्लांट्स, ऐसे जर्मप्लाज्म के अंदर प्लांट्स जिनके अंदर ज्यादा रेजिस्टेंस हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो। तो मैंने क्या किया, और ये मुझे कैसे पता चलेगा, मैं उनकी टेस्टिंग करूंगा, मैं उनको देखूंगा क्या इनमें बीमारी लगती है, मैं उनके अंदर इंसाइट करूंगा बीमारी, मैं फंगस डाल दूंगा उनके ऊपर, मैं बैक्टीरिया उनके ऊपर डाल दूंगा, मैं वायरसेस उनके ऊपर डाल दूंगा, मैं देखूंगा कि क्या उनमें बीमारी लगती है कि नहीं। अगर उनमें बीमारी नहीं लगती, देन दे आर माई पेरेंट्स, देन दे आर द बेस्ट पेरेंट्स। तो दूसरा स्टेप है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ पेरेंट्स। You select parents out of your germplasm and then you test those parents and they should be disease resistant. Once they are disease resistant, वो disease resistant है, आप क्या करेंगे, आप जिस क्रॉप के अंदर वो जीन जो है वो डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप करना चाहते हैं, आप उस प्लांट के साथ इन प्लांट्स की हाइब्रिडाइजेशन करोगे। तो तीसरा स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन प्लांट्स। तो जैसे ही हमने हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सिलेक्टेड पेरेंट्स की हमने हाइब्रिडाइजेशन की, उनकी जो है आर्टिफिशियल क्रॉसिंग की, उसके बाद हम क्या करते हैं, वी गो फॉर सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिकम्बिनेंट्स। हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऐसे प्लांट सिलेक्ट करते हैं, ऐसे रिकम्बिनेंट्स सिलेक्ट करते हैं जिनके अंदर आपको डिजीज रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। आप ऐसे रिकम्बिनेंट्स सिलेक्ट करते हैं, आप ऐसे हाइब्रिड सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है। और आप जब उनके डिजीज रेजिस्टेंस आपको लगती है कि इसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, आप वो डिजीज रेजिस्टेंस फिर इवॉल्वेट भी करते हैं। आप देखते हैं कि क्या इसमें बीमारी लगती है कि नहीं। अगर नहीं लगती है तो इन रिकम्बिनेंट्स को आप आगे ले जाते हैं। उन रिकम्बिनेंट्स की हम फाइनल स्टेप पे क्या करते हैं, उनकी हम टेस्टिंग करते हैं, उनके सीड्स को हम सो करते हैं।
कहाँ पे रिसर्च फील्ड्स के अंदर, वहां पे हम इसको टेस्ट करते हैं कि देखते हैं इसमें डिजीज रेजिस्टेंस है कि नहीं। जब हमें उनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस मिलती है, हम उनकी टेस्टिंग करते हैं। जब टेस्टिंग करते हैं, सबसे पहले रिसर्च फील्ड्स में टेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद फार्मर्स फील्ड के अंदर टेस्टिंग करते हैं इन डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स। जब आपने टेस्टिंग की, फाइनली जो है यू गो फॉर रिलीजिंग ए वैरायटी। सो मैंने आपको बताया, याद रखना हमेशा जब भी ब्रीडिंग आपने करनी है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग आपने करनी है, आपने यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। चाहे कन्वेंशनल ब्रीडिंग फॉर एनहांसमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड हो, चाहे कन्वेंशनल ब्रीडिंग फॉर एनहांसमेंट ऑफ इंप्रूव्ड कैरेक्टर्स हो, न्यूट्रिशनल क्वालिटीज हो, चाहे कन्वेंशनल ब्रीडिंग फॉर एनहांसमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस हो, चाहे कन्वेंशनल ब्रीडिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस हो, या और किसी तरह की भी कन्वेंशनल ब्रीडिंग करनी हो, हमेशा आपने यही स्टेप फॉलो करने हैं। पहले स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म, इस केस में फॉर रेजिस्टेंस जीन्स, देन यू हैव टू गो फॉर सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ पेरेंट्स, देन यू कैरी आउट हाइब्रिडाइजेशन, देन यू कैरी आउट सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिकमेंडेंट्स, एंड फाइनली यू गो फॉर टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ वैरायटीज। एंड आई टोल्ड यू दैट this conventional breeding that involves what is called as hybridization and selection, this has been used to develop a number of crop varieties in different crops, and those crop varieties, they are either resistant to fungi, they are either resistant to bacteria, they are either resistant to what's called as viruses. For example, मैं यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। हमने इंडिया के अंदर वीट क्रॉप की एक वैरायटी डेवलप की, दैट वैरायटी इज कॉल्ड एज हिमिगिरी। रिमेंबर, हिमिगिरी इज द वैरायटी ऑफ द वीट क्रॉप which has resistance against leaf and stripe rust and what is called as hill bunt. मैंने आपको पहले ही बताया, जो फंजे फंजे सबसे ज्यादा डिजीज प्लांट के अंदर करते हैं, जो ये रस्ट डिजीज है, चाहे लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट हो, ये फंगल डिजीजेस है। हिल बंट भी जो है ये फंगल डिजीज है। तो हमने यहाँ कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन के थ्रू हमने डिफरेंट क्रॉप प्लांट्स के डिफरेंट वेराइटीज डेवलप किए, और उन प्लांट वेराइटीज के अंदर या तो फंगल रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, या तो उनमें बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट है, या तो उनके अंदर वायरल रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट है। मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया, वीट क्रॉप की हमने एक वैरायटी डेवलप की, दैट वैरायटी इज कॉल्ड एज हिमिगिरी। दिस हिमिगिरी शोज resistance against leaf and stripe rust. Besides, it shows resistance against hill bunt. Similarly, we are having brassica. Brassica की हमने एक variety develop की, that variety is called as Pusa suvarnum, or this variety is also called as Karan Rai. And this plant, this variety shows resistance against white rust. White rust is again the disease caused by what is called as fungi. Similarly, third we are having cauliflower, फूल गोभी की हमारे पास क्रॉप है। कुछ वेराइटीज हमने डेवलप की है, एक है पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल K1. Both the varieties, Pusa Shubhra and Pusa Snowball K1, they show resistance against black rot and curl blight black rot, and both are the diseases caused by bacteria and what is called as viruses. And remember, we are having cowpea की हमने एक variety बनाई through conventional breeding, that is called as Pusa Komal, and this Pusa Komal is resistant against bacterial blight disease इसके अंदर नहीं होती है। इसी तरह हमने चिल्ली की एक वैरायटी बनाई, उस वैरायटी का नाम है पूसा सदाबहार। That variety is called as Pusa Sadabahar. And remember, this Pusa Sadabahar variety of chili, it has resistance against chili mosaic virus, it has resistance against leaf curl virus, it has resistance against tobacco mosaic virus. So मैं आपको फिर से बताता हूं कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू हमने डिफरेंट क्रॉप प्लांट्स के डिफरेंट वेराइटीज बनाए, और उन वेराइटीज के अंदर या तो फंगल रेजिस्टेंस है, या तो उनके अंदर बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है, या तो उनके अंदर जो है वायरल रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल, वीट की हिमिगिरी वैरायटी, इट हैज रेजिस्टेंस जीन्स अगेंस्ट लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हिल बंट। हमारे पास ब्रासिका की वैरायटी है पूसा सुवार्निम, या करम राई भी इसको बोलते हैं, इसमें व्हाइट रस्ट रेजिस्टेंट जीन्स है। हमारे पास कॉलीफ्लावर फूल गोभी की वैरायटी है, पूसा सदा शुभ्रा है, पूसा स्नोबॉल K1 है, it has black rot and curl blight black rot resistance genes in it. हमारे पास कॉपी की एक वैरायटी है, that is called as Pusa Komal, and remember this Pusa Komal has resistance against bacterial blight. We are having chili, and chili की हमने एक वैरायटी बनाई, that variety is called as Pusa Sadabahar, and this Pusa Sadabahar variety of chili, it has resistance genes against what is called as chili mosaic virus, leaf curl virus and tobacco mosaic virus. एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग से न सिर्फ हमने जो है नए वैरायटीज डेवलप किए, कभी कभार क्या देखा गया
Sometimes the wild relatives of a crop species possess disease resistant genes, but have low yield. कभी कभार देखा गया जो हमारे पास वाइल्ड रिलेटिव्स है या वाइल्ड वेराइटीज ऑफ ए क्रॉप स्पीसीज जो है या प्लांट स्पीसीज जो है, उसके अंदर क्या देखा गया, उसमें डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उस वाइल्ड रिलेटिव या वाइल्ड वेराइटी की जो यील्ड होती है बहुत कम होती है। हमारे पास साइमल्टेनियसली एक ऐसी वेराइटी होती है उसी क्रॉप की, उसी वाइल्ड रिलेटिव की एक इंप्रूव्ड वेराइटी होती है या कोई क्रॉप होती है, उस क्रॉप के अंदर हमारे पास क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस कम है, लेकिन हमारे पास उसके अंदर यील्ड बहुत ज्यादा है। अब यहां पे नेसेसिटी बनती है कि जो ये वाइल्ड रिलेटिव्स या वाइल्ड कोई स्पीसीज जो है या किसी क्रॉप वाइल्ड प्लांट्स जो है किसी क्रॉप स्पीसीज के, उनके अंदर हमने देखा उसमें यील्ड कम है लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स है। हमारे पास कोई कल्टिवेटेड क्रॉप स्पीसीज है लेकिन उसके अंदर क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स नहीं है, डिजीज रेजिस्टेंस उसके अंदर नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या है, यील्ड बहुत ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन के थ्रू हम जो है ये डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स जो है वाइल्ड वेराइटी से उस क्रॉप के अंदर लाएंगे, ताकि वो जो हमारा क्रॉप है उसके अंदर क्या हो जाएगा, उस क्रॉप के अंदर जो है एक हाई डिजीज रेजिस्टेंस भी होगी और उस क्रॉप के अंदर जो है उसकी यील्ड भी, उसकी प्रोड्यूस भी जो है वो काफी ज्यादा बनेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऐसी वेराइटी बनाई, शाबाश, भिंडी की एक वेराइटी हमने बनाई, भिंडी की एक वेराइटी हमने डेवलप की, भिंडी की वेराइटी, भिंडी का जो बॉटनिकल नेम है दैट इज एबल मॉस्चस एस्कुलेंटस। इसकी हमने एक वेराइटी बनाई, उस वेराइटी का नाम है प्रभानी क्रांति। इसकी हमने एक वेराइटी बनाई, दैट वेराइटी इज कॉल्ड एज प्रभानी क्रांति। इस वेराइटी की खासियत क्या है, इसके अंदर हाई यील्ड भी है, शाबाश, इसके अंदर हाई डिजीज रेजिस्टेंस भी है, डिजीज रेजिस्टेंस डीआर भी है, दोनों फीचर है इसमें, हाई यील्ड भी है, डिजीज रेजिस्टेंस भी है। ये जो हमने एबलमॉस्चस एस्कुलेंटस प्रभानी क्रांति ये हमने डेवलप की बाय ट्रांसफरिंग disease resistance genes from a wild relative, from a wild individuals to a species to an what's called as crop plant of Abelmoschus esculentus। भिंडी की क्रॉप में हमने ट्रांसफर किया वाइल्ड रिलेटिव से उस भिंडी वैरायटी के अंदर, जिसमें हमने ये ट्रांसफर किया, उसके अंदर हाई यील्ड था लेकिन उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस नहीं थी। हमने क्या किया, एक वाइल्ड भिंडी हमने देखा, उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस प्रेजेंट थी, हमने ये डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स जो है उनको ट्रांसफर किया फ्रॉम द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ भिंडी टू दैट पर्टिकुलर वेराइटी एंड वी गॉट ए न्यू वेराइटी ऑफ दिस एबलमॉस्चस एस्कुलेंटस। भिंडी की हमें एक नई वेराइटी बन गई, दैट वेराइटी इज कॉल्ड एज प्रभानी क्रांति। उस वेराइटी के अंदर हाई यील्ड भी है, उस वेराइटी के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस भी है। तो मैंने आपको बताया कि जब हमने ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस करनी हो, हमारे पास दो तरीके हैं, जनरली हमारे पास दो तरीके हैं। एक हमारे पास है कन्वेंशनल ब्रीडिंग, जो मैंने अभी तक आपके सामने सारा कुछ डिस्कस किया, लेकिन कन्वेंशनल ब्रीडिंग की एक प्रॉब्लम है कि ये हम ज्यादा फॉर डिजीज रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है, व्हाई दिस, देयर आर लिमिटेशंस ऑफ दिस कन्वेंशनल ब्रीडिंग। लिमिटेशंस इसलिए है बिकॉज वी आर हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट इन वाइल्ड रिलेटिव्स और इन क्रॉप इन वाइल्ड स्पीसीज और इन वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स। याद रखना, कन्वेंशनल ब्रीडिंग हैज अ बिग लिमिटेशन दैट वी डू नॉट हैव सफिशिएंट number of disease resistant genes present in wild relatives or wild species of a crop plant। उससे क्या होता है, जब हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ जीन्स हो, आपके पास जीन्स उतने ज्यादा नहीं है फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, तो आप उनको कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक दूसरा अप्रोच है, हमारे पास एक तरीका है, दूसरा तरीका है दैट हम अपने क्रॉप प्लांट्स को डिजीज रेजिस्टेंट बना सकते हैं। वो तरीका जो है दैट इज थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग। सो हम अब देखेंगे जो दूसरा तरीका है उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। हाउ, व्हाट इज दिस म्यूटेशन ब्रीडिंग, हाउ म्यूटेशन हेल्प्स अस इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू डिजीज रेजिस्टेंट व्हाट इज कॉल्ड एज क्रॉप वैरायटीज और क्रॉप प्लांट्स। म्यूटेशन आपने सुना होगा, म्यूटेशन वर्ड आपने सुना होगा,
म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन इज sudden inheritable changes in the genetic material of an organism, of a plant. शाबाश, of an organism. शाबाश. रिमेंबर, हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है. इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस है. दीज नाइट्रोजनस बेसिस दे गेट मॉडिफाइड. ये मॉडिफाई हो जाते हैं बाय म्यूटेशन. और उससे क्या होता है? टू फॉर्म न्यू जीन्स. शाबाश. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो what happens actually, mutation is sudden inheritable change in the genetic material of an organism. साइंटिस्ट ने देखा कि टाइम के साथ कुछ स्पीसीज जो है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो है, उनके कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं. जब साइंटिस्ट ने इसको डिटेल में स्टडी किया, उन्होंने देखा कि एक्चुअली जो चेंज उन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में उनको रिफ्लेक्ट हुई है, दैट चेंज एक्चुअली हैज हैपेंड इन देयर जेनेटिक मटेरियल बिकॉज ऑफ ए प्रोसेस. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज म्यूटेशन. व्हाट दिस म्यूटेशन डज, इट मॉडिफाइज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. वी नो दैट इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वी आर हैविंग नाइट्रोजनस बेसिस, and when mutation takes place, these nitrogenous bases, they get modified in one way or another way to form new genes in living organisms. And it has been found that sometimes in these genes, they are beneficial for living organisms, but in majority of cases these new genes, they are detrimental because they are having negative effects, they are having harmful effects on the survival of the living organisms. But we should not ignore the other point that sometimes these modified or newly formed genes, as a result of mutation, they are beneficial for the living organism. They enhance what is called as for example, if we take the case of plants, in this particular case, that it has been seen that sometimes due to mutation, some new genes are formed in plants, in crop varieties, and in those genes make those plants resistant against diseases. So what scientists they do, they treat those plants. What we do, we treat our seeds or we treat our crop plants with mutagens. Mutagens are all those agents that induce mutation, that cause mutation in a living organism. So these mutagens, remember, mutagen is any agent. Mutagen is any substance that causes mutation. It can be radiation. It can be radiations. For example, X-rays are mutation causing radiations. Gamma rays are mutation causing radiations, or they may be chemicals. There are certain chemical substances that also called mutation. For example, H2O2 is hydrogen peroxide, or we are having acridine orange. This acridine orange is also a mutagen. We are having nitrous oxide. Nitrous oxide is also a mutagen. So there are certain radiations that cause mutation, that can lead to the mutation change in the genetic material of an organism, that can lead to the production of new sets of genes. And those new sets of genes, sometimes they can be beneficial, they can provide disease resistance to such crop plants where that mutation happens. और इसी तरह मैंने आपको बोला हमारे पास केमिकल्स है. इन केमिकल्स के बदौलत से भी हम क्रॉप प्लांट्स में म्यूटेशन इंड्यूस कर सकते हैं. ये केमिकल्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आप जानते हैं एक्रिडीन ऑरेंज जो है ये म्यूटाजन है. नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये भी जो है म्यूटाजन है. इन म्यूटाजन्स के थ्रू, इन रेडिएशन, इन केमिकल्स के थ्रू हम म्यूटेट करते हैं क्रॉप प्लांट्स को. और जब वो क्रॉप प्लांट्स म्यूटेशन हो जाती है, जब उनमें म्यूटेशन देखने हो जाती है, तो इनमें देखने को मिला है कि उनमें नए जीन्स बनते हैं, और दो जीन्स दे मेक देम resistant against a number of disease causing pathogens. They make them resistant either against fungi or against what is called as bacteria, or against viruses. For example, हमारे पास जो है मूंग बीन की मैं बात करूंगा. मूंग बीन varieties have been developed through mutation breeding.
shabash, that are resistant against yellow mosaic virus, and not only yellow mosaic virus but also against powdery mildew. Powdery mildew is a disease caused by fungi. तो मैंने आपको बोला म्यूटेशन ब्रीडिंग, द टाइप ऑफ ब्रीडिंग in which what we do, in which we induce mutations, we cause mutations in crop plants so as to create new sets of genes in them, and those new sets of genes, they make them resistant against a number of pathogens. This breeding is called as mutation breeding. मैंने आपको बताया कि म्यूटेशन के थ्रू हमने एक क्रॉप प्लांट बनाया, उस क्रॉप प्लांट के अंदर जो है हमने म्यूटेशन के थ्रू ऐसे जीन्स डेवलप की, और वो जीन्स जो है उस प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बनाते हैं, बीमारी होने लगने नहीं देते हैं. हम उस प्लांट को या तो डायरेक्टली रिलीज करते हैं एज वैरायटी. याद रखना, once we cause mutation in a crop plant and we have seen that yes, the disease resistant genes have been now developed in such crop plant, we either directly release that variety for cultivation in the फार्मर्स फील्ड. ये हमारे पास एक तरीका है. जो बेटर तरीका है, दैट इज वी यूज दैट वैरायटी जिसके हमने ये जीन्स डेवलप किए हैं, उस वैरायटी को आप एज अ सोर्स ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स हम यूज करते हैं. उसका मतलब क्या हो गया, यानी हम उसको एक एज पेरेंट सिलेक्ट करते हैं जिस दूसरे क्रॉप प्लांट के अंदर हमने इसका ये जीन ट्रांसफर करना है. हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग के सेटअप्स बाद में फॉलो करते हैं. यानी म्यूटेशन ब्रीडिंग के अंदर भी कहीं ना कहीं कन्वेंशनल ब्रीडिंग के सेटअप्स आ ही जाते हैं, खासकर उस वक्त जब आपने म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू नए डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स किसी वैरायटी के अंदर, किसी क्रॉप प्लांट के अंदर डेवलप किए हैं, और आप उन कैरेक्टर्स को किसी दूसरे वैरायटी के अंदर, दूसरे क्रॉप प्लांट के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं. यानी आप उस प्लांट को जिसके अंदर म्यूटेशन के थ्रू आपने नए डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स डेवलप किए हैं, आप जब उसको एज अ सोर्स फॉर एज अ सोर्स ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स अगर आप उसको यूज करेंगे, तब उसके बाद वो कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू हम किसी क्रॉप प्लांट में दूसरे वैरायटी के अंदर वो जीन्स ट्रांसफर करते हैं. यानी याद रखना है, म्यूटेशन ब्रीडिंग ऐसी ब्रीडिंग है जिसमें हम म्यूटेशन किसी क्रॉप प्लांट के अंदर काज करते हैं, म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं, ताकि केमिकल्स के थ्रू या रेडिएशंस के थ्रू, ताकि उसके अंदर जो है नए जीन्स बने और वो जीन्स जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स हो. याद रखना है, उस वैरायटी को अगर आप म्यूटेशन के थ्रू आपने देखा कि कोई वैरायटी को आपने म्यूटेशन काज किया, उसके अंदर वो आप डिजीज रेजिस्टेंट बन गई, उसको आप डायरेक्टली रिलीज कर सकते हैं एज वैरायटी, या उसको आप सोर्स यूज कर सकते हैं, उसे आप सोर्स यूज कर सकते हैं फॉर डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स, एंड दोज डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स आर देन ट्रांसफर्ड टू सम न्यू क्रॉप प्लांट through conventional breeding. So याद रखना है, in this way we carry out breeding for disease resistance in crop plants. And remember, जो डिजीजेस क्रॉप प्लांट्स में है, ये सबसे ज्यादा डिजीजेस जो है ये हमारे ट्रॉपिकल प्लांट्स में लगते हैं एज कंपेयर टू टेम्परेट प्लांट्स में. याद रखना, ट्रॉपिकल plants जो है, they are more affected by fungi, they are more affected by bacteria, they are more affected by viruses. It means that tropical plants, they are more prone, they are more damaged by the what is called as disease causing pathogens or disease causing agents as compared to that of temperate plants. In next video lecture we will focus on plant breeding for development of insect pest resistance in crop plants, because after these pathogens, these bacteria, fungi, and what's called as viruses, it is the different insects and different pests that destroy, that damage our crop plants. Not only they damage our crop plants, but they also damage our produce. Thank you for watching this video lecture.